Hello dear students and welcome back to my channel. So your next exam is Arabic. So in this video we'll discuss the guest paper for Arabic degree second semester. As you know students, it is a common paper to BA, BCom, BBA, BSc and BSW. Subject is Arabic second language and it is a guest paper. So the exam is for 3 hours and maximum marks are 80 marks. There are two sections, Section A and Section B. Section A carries 20 marks. In this section, you will get 6 questions. Each question carries 4 marks. So out of 6, any 4 you have to do. Question number 1, translate the following verses with reference to the context. So आपने सिलेबस की वीडियो देखी है ना स्टूडेंट्स, उसमें 2 सूराज है, सूरा अल क़द्र और सूरा अल ज़िलज़ाल। तो यहाँ पर ये आयत ली गई है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़, ये सूरा अल ज़िलज़ाल से है, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज सूरा अल ज़लज़ला। तो यहाँ पर सूरा अल क़द्र की भी दे सकता है या फिर सूरा अल ज़िलज़ाल की। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन से, जो कि आपका प्रोज लेसन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बाय विच गेट फादर एंड हिज फैमिली एंटर द एग्जीबिशन। بأي بوابة دخل الوالد وأهله في المعرض. So the answer would be دخل الوالد وأهله في المعرض ببوابة غاندي بوان. Means father and his family entered the exhibition by Gandhi Bhavan gate. Now let us see question number 3. Define verbal sentence with example. वर्बल सेंटेंस जिसे हम अल जुमलतुल फ़िलियतु कहते हैं, ये एक टाइप का कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो 2 तरह के कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, एक नॉमिनल और एक वर्बल सेंटेंस। एग्जाम में एक साल वर्बल पूछता है तो दूसरे साल नॉमिनल। तो कोई ऐसा सेंटेंस जो कि वर्ब के साथ स्टार्ट होता है वो वर्बल सेंटेंस होता है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी सून। सो यहाँ पर ये 5 मार्क्स का है बिकॉज ये सेक्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हदीस शरीफ। ये हर टाइम 5 मार्क्स का ही पूछता है स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ शॉर्ट में ही पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है, इम्पैक्ट ऑफ हदीस शरीफ। नेक्स्ट बिट इज राइट एनी 5 मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड इज दर्जा, मीन्स बाईसाइकिल। सेकेंड वर्ड इज अल अर्थ, विच मीन्स अर्थ। Next is Marit, which means exhibition or shows. Next word is Usra. Usra means family. Tazakir means tickets. Mathaf means museum. Malik means king. Qasr means palace. So these were the most repeated ones. So out of 8, any 5 meanings ही करने हैं आपको. Next question. Convert any 5 of the following words from singular into plural. First word is talib. तालिब का प्लूरल होगा तुलाब. तालिब means student and तुलाब means students. Now second word is ab. Ab means father. Plural of ab would be aba, means fathers. Third word is sob. Sob means dress or clothes. Plural would be thiyab, means dresses or clothes. Fourth is jadid. Jadid means new. So plural would be judud. Fifth one is tabib. Tabib means doctor. Plural is atiba. Atiba means doctors. Sixth word is jamia. Jamia means university. Plural would be jamiat, universities. Seventh word is hadiqa. Hadiqa means garden. Plural would be hadaiq, means gardens. Last word is miftah. Miftah means key. Its plural would be mafatih. Mafatih means keys. Some easy tricks to change singular into plural is that for female names, we have to see the ending. If it ends with ta marbuta, that means it is a female name. So we have to remove ta marbuta and write alif and ta, the big ta, okay? Like just now we have seen in the 7th word jamia. Jamia ता मरबूता के साथ एंड होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी। तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें ता हटाना होगा एंड राइट अलिफ एंड बिग ता। और जो मैस्कुलिन नेम्स होते हैं यानी कि मेल जेंडर के, वो वाव नून से एंड होते हैं,
तो हमें वाव नून हटाकर ये नून लगाना होता है एंड में। लेकिन ऐसे वर्ड्स आपको नहीं पूछता है मैस्कुलिन में, सो इट्स बेटर यू हैव टू मेमोराइज द मैस्कुलिन नेम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए। नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। मोस्टली यू हैव टू राइट समरीज ओनली। यहाँ तक कि कोई भी ग्रामर टॉपिक है तो उसकी भी समरी ही आपको लिखनी होती है इसमें। एंड ये सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इट कैरीज 60 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल द तफसीर ऑफ सूरतुल कदर। सूरतुल कदर एक सूरा है जिसकी समरी ऑलरेडी अपलोडेड है। इन डिटेल यू कैन अंडरस्टैंड। आप या तो ये सूरे की समरी लिख सकते हो या फिर एक और सूरा है चॉइस में, सूरतुल जिलजाल यानी कि सूरतुल जलजला। दोनों में से कोई भी एक समरी आप लिख सकते हो। फॉर 15 मार्क्स check the playlist given in the comment section. If you want written summaries, that also I can share, but it is not for free students. You can contact me on Telegram for it. Now question number 8, write summary of the lesson Al-Maris Al-Sanai. It means इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की समरी लिखनी है आपको। ये वही एग्जीबिशन है जो कि हैदराबाद में होता है। इसमें भी आपको चॉइस है, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर समरी ऑफ नवाब मीर उस्मान अली खान द 7th निज़ाम। Bit number 9, it is grammar bit. So 2 grammar topics are there. Any one you have to write the summary. Define al-murakkabu al-zafi. It means possessive phrase. So possessive phrase और एक और होता है adverbial phrase. ये दोनों भी टाइप्स होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस के, यानी कि अल-मुरक्कबु अल-नाक़िस के। सो हमेशा एग्जाम में ये पोजेसिव फ्रेज ही पूछता है, यानी कि अल-मुरक्कबु अल-ज़ाफ़ी। अब या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आपको चॉइस है, आप लिख सकते हो अल-जुमलतु अल-इस्मियतु, मीन्स द नॉमिनल सेंटेंस। ये पार्ट होता है कंप्लीट सेंटेंस का जो कि है अल-मुरक्कबु अल-मुफीदु। तो इस बिट नंबर 9 में आपको ग्रामर करना नहीं है, इसकी बस समरी लर्न करनी है जो कि है इंग्लिश में। एक आध अरबिक का वर्ड आ जाएगा बस। लास्ट बिट 10th बिट इज राइट इन डिटेल द कंपाइलेशन ऑफ कुरान मजीद। तो इसकी भी आपको समरी ही लिखनी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन ये समरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स टू गो विद द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ होली कुरान ऑन अरबिक लिटरेचर। स्टूडेंट्स इसकी समरी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, check it out now. So the next upcoming video is about impact of the Holy Quran for 5 marks, as all 15 mark summaries are already uploaded. I hope you understood the paper pattern and the guest paper.